Good afternoon, dear students. Myself, P.S. Megha Goyal, welcomes you all for the today's Success at CA exam for Paper 2 Business Laws at the Foundation for September 2024 examinations. Dear students, as you might be aware that this paper is of 100 marks and purely descriptive in nature. And there will be two types of questions. One is knowledge and comprehension, and second is application and oriented. We have given the option to everyone. Whoever is having any query, they can write to us through chat box, or they can raise their hand and we will unmute yourself. Okay. So many of you, some of the students might be those who has not cleared the June 2024 examinations, and many students are giving the September 2024 exam as a first time. So first I am asking to those students who has given their paper in June 2024 but could not clear their paper. Dear students, please do not dishearten yourself. You will definitely clear your paper in this September 2024, and do not get afraid. Sometimes some thoughts came in our mind that I have not cleared my paper in June 2024. What if I have not cleared in September 2024? Do not think about this. Do not think that you will fail again. Think that you will clear your September 2024 foundation exam and you will reach to intermediate. Okay? So, ये जो negative thought है, please avoid this. You will definitely become a chartered accountant after 4 to 5 years of hardship. So do not think that मेरा पेपर सितंबर में क्लियर नहीं होगा, मेरा जून में 10 था, मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ. It happens many times. Yes, it happens many times that we worked hard but could not clear the paper, or we cannot clear the paper by 1 or 2 marks. So this time, give your 100% so that you can clear your September 2024 exam with flying colors. Okay, and there are many students also who are giving their paper for the first time. So I will give you the tips, the examination tips, and how to revise your paper. So all will be covered during this webcast. Yes, Akhil, you can unmute yourself. You have raised your hand. Hello, good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Ma'am, I got the examination in June 24. Okay. And I got 39 marks, ma'am. Okay. I attempted 80 marks paper. Why you have attempted? Ma'am, can you explain how the... Ma'am, for the time issue, I cannot manage the time as well. Okay. Okay. So, I am attempted 80 marks paper, ma'am. I am write the provisions correctly. I am include the answer in the fact of the case included and conclude also. Ma'am, what are the areas with my marks is deducted? Dear students, What ये can तो be the areas? अखिल ये तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा. एक तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नॉट कंप्लीटेड द 100 मार्क्स पेपर. मैंने जून 2024 का वी हैव टेकन द वेबकास्ट. आई टोल्ड दिस मेनी टाइम्स कि आपको 100 मार्क्स का पेपर करके आना है. एंड 100 मार्क्स का पेपर आप कैसे करके आओगे? व्हेन यू विल कम डू द रिटन प्रैक्टिस एट होम. ओके, सो आई टोल्ड I solved all the 3 MTPs on the home before the exams. Okay. But on the examination hall, some pressure is inside. So Obviously there are some examination conditions. ये जो fear होता है, तभी हम कहते हैं कि आप उसको घर पे मॉक टेस्ट पेपर कीजिए ताकि वो एग्जाम का fear आपका कम हो जाए. मे बी आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ठीक ना रही हो, वो आपने अपनी सर्टिफाइड कॉपी से भी आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए हैं. तो इसके लिए आप ये कीजिए. देखो, अब जून 2024 इज गॉन. Now is September 2024 and your exams are starting on 12 September onwards, I suppose. So only if you see only 30 to 13 से आपका फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है. तो if we see only 32 or 33 days are left for your examination.
ओके, तो फॉरगेट अबाउट जून 2024. मेनी टाइम्स सीए में ये होता है कि हमारा पेपर एक बारी में क्लियर नहीं होता. क्या रीजन रहा उसके बारे में सोच के कोई, देयर इज नो ऑप्शन राइट नाउ. जस्ट थिंक अबाउट सितंबर Ma'am, 2024. I want to know आप that किसमें because बोलिए, I आप think किसी में बोलिए. clear. हाँ जी. मैम मैम इसलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे उसको सुधार सकूं. तो आप जस्ट मेरा एक बारी वेबकास्ट अटेंड कीजिए, हाफ एन आवर और 1 आवर का. उसके बाद आप मुझे अपनी क्वेरी बताइएगा. फर्स्ट कंप्लीट माय, आई वांट टू कंप्लीट माय वेबकास्ट. ओके, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द इश्यूज. अनम्यूट ही करना पड़ेगा. ठीक है अखिल, फर्स्ट यू जस्ट लिसन टू मी, ओके देन मैम. I will take your query further. You just raise your hand again. Okay? I am here only for this purpose, to give you examination tips, to give you revision tips for September 2024 examinations. Okay? So now we can start our webcast, our lecture. Yes. First of all, I am here to motivate you. जैसे अखिल का केस देखा, we have seen the case of अखिल. तो मैंने आई टोल्ड यू इन एडवांस दैट जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स, जस्ट अवॉइड दैट नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम यू, दैट आई हैव नॉट क्लियर माय पेपर इन जून 2024. व्हाट if I could not clear the September 2024? It will definitely clear in September 2024 and you will become a chartered accountant. Just keep this thought in your mind. And I am addressing you as a future chartered accountant. So why can't you? Okay, so just assume that you are future chartered accountants. I am thinking the same, that I am talking to the future chartered accountants. Many of you, or I say all which are attending this webcast, they will become a chartered accountant. So why can't you think the way? Okay, just keep positive minds, positive thoughts in your mind. When you keep the positive thoughts, now it will multiply. And when you keep negative thoughts, it will also multiply. So see the results. देन एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर. ये आपको पता है कि अगर आपको फॉरेन में जाना है तो यू नीड अ पासपोर्ट. बट हमारे फ्यूचर के लिए व्हाट इज अवर पासपोर्ट? द एजुकेशन. सो दिस 4 to 5 years, just I listen in the morning one session for this foundation only. The faculty is saying that CA wants your 5 years, but your 5 years will depend, will will give a status, give a life to your next 50 years. So this 5 years will decide what will be your life in next 50 years. So just forget everything कि मुझे सोशल मीडिया देखना है, आई वॉन्ट टू सी द इंस्टाग्राम, आई वॉन्ट टू सी द व्हाट्सएप, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू get there. No, don't think these things in your mind for 4 to 5 years only. Okay, after completing your chartered accountant course, you can do anything what you want. Bhavna, please unmute yourself. We will take the queries later on. Let me finish my session first, then I will talk to everyone. Okay, please be ready. I will ask questions from everyone. Yes, education is our passport to the future. For tomorrow belongs to people who prepare for it today. तो अभी you are preparing for CA, but what you are doing? You are preparing for your tomorrow. You are preparing for your next 50 years. Okay, so just concentrate, focus and believe in yourself that you will clear the CA foundation course. Okay, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा. अभी से हम नेगेटिव क्यों सोचे? अभी हमें पॉजिटिव सोचना है कि यस, आई एम गोइंग टू क्लियर माई सितंबर 2024. उसके बाद मेरा 2025 में आई विल गिव माई इंटरमीडिएट. यस, डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम वॉच देखते रहते हैं कि यस आई हैव मेंटेन द टारगेट ऑफ 2 hours. 2 hours के बाद आई विल टेक अ गैप, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर. नो, डोंट डू इट. When you are studying, don't look at the clock. Do what the clock is doing. It is going, it is going, it is going.
है ना. इट इज कीप गोइंग, चलती रहती है घड़ी. तो ऐसे ही हमारी स्टडी भी चलती रहनी चाहिए. डोंट स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट स्टॉप, आप चलिए. यू विल डेफिनेटली क्लियर योर. राशि, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yes, coverage of the syllabus. Many of the students are must be aware that what are the coverage. Yes, Mr. Himanshu has sent, ma'am, how can I cover my business law syllabus faster to score more? Okay, how can I cover for? I just wait for some time, then I will take your query. Law paper has negative marks or not? Ma'am, law paper is very difficult for me. How to get better marks? There is no negative marking, dear student. Negative marking is there for paper 3 and paper 4 because they are objective type papers. But this is a descriptive type, so there is no negative marking. Which pen is used to write law exam? There is no specific instruction for law exam. All the examination you have to write using black pen. But read the examination instructions carefully when you are giving your paper. Yes, please tell us about the format of the answers for both case study questions and direct questions. Dear, who has sent? Miss Samina, I will take this question also. Yes. Many of the queries I am receiving, which I will cover in my PPT in my session. So I want to complete my session first, then I will take your queries, which is not covered in my session. So just concentrate right now on what the PPT is covered and what I am speaking. After that, you please raise your hand and you can write in chat box also. Okay, so just give me some time, listen to me carefully, then we will talk. Coverage of the syllabus, that there are 7 chapters. Okay, first is your Indian regulatory framework. The second is Indian Contract Act 1872. In it 9 units are covered. It is a very important topic due to weightage of marks, because Indian Contract Act में 9 units are covered and around 25 to 30% paper comes from this Indian Contract Act. Okay, the Sales of Goods Act, it covered 4 units. Indian Partnership Act में कितने units हैं बताइए? 3 units. Limited Liability Partnership में कितने units हैं बताओ मुझे? Just tell me. Write through chat box. No units. Yes, Yukta. Perfect answer. No unit is there in LLP, Companies Act and Negotiable Instrument Act. Okay, तो यूनिट्स कहाँ पे है हमारी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. I am assuming that you have covered the entire study material thoroughly. You have gone through each and every unit covered in contract, sales and partnership. Companies Act, Negotiable Instrument and Indian Regulatory is a new chapter, which are many of some students might be there which have registered themselves under the old scheme, but now they are giving the paper in the new scheme. So there is a change. Earlier the paper was of 60 marks, but now the paper has been increased to 100 marks. Indian regulatory has been added and negotiable instrument has been added, and some special contracts of your Indian Contract Act 1872. So ये सिलेबस हमें पूरा गो थ्रू करना है. देयर शुड नॉट बी एनी सिलेक्टिव स्टडी. ओके, कई बारी क्या करते हैं बच्चे, एलएलपी का थोड़ा सा हमारा कंटेंट. डॉली, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, कई बारी क्या करते हैं बच्चे, चाहे इंडियन रेगुलेटरी आपका छोटा है, एलएलपी छोटा है, दीज आर स्मॉल चैप्टर्स, इनको स्किप कर जाते हैं. नो, डू नॉट स्किप दिस चैप्टर्स because every chapter is important. Okay, questions are formed from every chapter, not a single chapter is left out. Okay beta, ठीक है. Now moving to further. Yes, only 35 days is left. Many of your students might be thinking, but what is the object of scheduling this webinar? कि क्यों हमने webcast रखा है? I told you in advance that focus on presentation.
I will guide you that law is a theoretical paper, so presentation of answers matters a lot. So how we can present our answers so that we can get good marks in our law paper. So presentation type and presentation, how to present our answers, what are the strategies, how to impress the examiners, these points we will consider. Okay. Exam strategy. This is a very interesting question. What will be the exam strategy when I will go for my paper 2 या paper 1? They both are of descriptive question, na? Descriptive paper. So what strategy? The paper will be of 3 hours and 15 marks reading time will be allocated to you. So मुझे अपना 3 hours 15 minutes how I want to utilize that we will convey you. Solving of questions, yes. When we will see that how the answers is presented. We will take some questions also. Discuss on the common issues. There are some common issues which might arises many a times, which we are facing many a times from you, dear students. That ma'am, इसमें क्या होना चाहिए? What will be the answer? Whether section number is compulsory? Whether case law is the answer? Whether we write in legal language? Whether we have to write the legal provision? Okay. What about the grammatical mistakes? Can we do grammatical mistakes or not? So all these types of questions, we are here from many years. So we have received multiple types of queries. So we have accumulated, we have consolidated so many common issues at this platform. So want to apprise all of you that yes, this is the common issue the many students are facing, and also you might be facing. So we will discuss over that common issues also. Yes. Working on improvement of your preparedness. आपकी preparation to complete. रखना नहीं है. Tanisha, please mute. Yes. Many of I am assuming that all of you have prepared 100% from the study material. But what tips I will give? Many of you might be not read the study material or might not have revised 2-3 times the study material, or they don't know how to practice the questions, or the questions are available at which website, or what are the sources available for practice. So by looking at this webcast we will come to know, yes, कि ये चीजें अवेलेबल है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. या मैंने तो क्या करा, आई हैव रीड ओनली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल 2-3 टाइम्स, बट आई हैव नॉट डन द प्रैक्टिस, written practice. I have not done the MTP. So I will tell you that what practice you can do in 1 month time. Okay. So these tips you can follow in other papers also. Okay. In your paper 1, paper 3 and paper 4 are MCQ types. There will be separate some different tips. But paper 1 is same, descriptive type. So you can follow these tips while going for the examination, while preparing for your paper. ओके. मोटिवेट फ्रॉम बेटर टू बेस्ट. कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो वो कहते हैं मैम ठीक है. नहीं, ठीक नहीं होना, हमें बेस्ट होना है. कि मैम आई एम कंप्लीटली 100% गुड, आई एम वेरी गुड. ऐसे हमें होना है कि यस, मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाए और मैं बेस्ट करके आऊं. बेटर नहीं करके आना मुझे. आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट परफॉर्मेंस इन माई September 2024 examinations. ओके. यस. कॉमन इश्यूज की मैंने बात की थी. जस्ट गिव मी 1 minute. यस. कॉमन इश्यूज हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला कॉमन इशू, स्टेप वाइज मार्किंग पैटर्न इज फॉलोड. कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम वेदर राइटिंग ऑफ लीगल प्रोविजन इज कंपल्सरी. बेटा ये पेपर आपका लीगल ही है, लीगल प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड है, तो लीगल प्रोविजन हमें लिखना ही लिखना है. वी हैव टू राइट द लीगल प्रोविजन. ओके. क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ऐसा आपने 12th में भी देखा होगा, यू गेट मार्क्स फॉर एवरी स्टेप. तो सेम स्ट्रेटेजी, सेम methodology is followed here. In CA papers also you get the step by step marks. For example,
the paper is of the question is of any particular question is of 6 marks. So 2 or 3 marks will be there for legal provision, 2 or 3 marks next to for different paragraphs. Okay, तो हमें क्या करना है? What we do? We have to write the legal provision compulsorily. सेक्शन लिखो ना लिखो, केस लॉ का नाम लिखो ना लिखो, बट लीगल प्रोविजन आपको जरूर लिखना है स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से. ओके, तो ब्रेकअप ऑफ मार्क्स होते हैं हमारे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन. देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या इशू डिस्कस कर सकते हैं? लीगल इशू एंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन प्रोवाइडेड सिचुएशन, कंक्लूडिंग करेक्ट आंसर. अभी आई विल गो टू द फर्दर स्लाइड ऑल्सो regarding how to present the answers in application and KNC based question. So this slide I will take, but here I am saying that if the question, there are two types of questions. First is your KNC. KNC questions क्या होते हैं? Direct theoretical. Okay, कि what is the associate company? Simple associate company, what is the significant influence? तो ये क्या है आपका? ये है आपका डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट क्वेश्चन, केएनसी बेस्ड क्वेश्चन. एक आता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन. एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें द एग्जामिनर विल प्रिपेयर अ स्मॉल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लाइक एसोसिएट कंपनी पे ही पूछ लिया कि कुछ उसमें 15% होल्डिंग है इस कंपनी की और ये सब्सिडरी कंपनी भी है, तो वेदर बताओ कि ये कंपनी एसोसिएट है. तो उसको हमें प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव टू अप्लाई द प्रोविजंस on that question. So that are your application oriented questions. Okay, so in both types of questions you have to write the legal provision. KNC question में क्या करना है? You have to divide in different paragraphs. Bullets में you can divide. Application oriented में क्या करना है? ये क्वेश्चन में से कई बार जून में भी पूछा था. First, in first paragraph, what will you write? The legal provision. Second में you can briefly discuss the question. Briefly, I can say 2-3 lines में आप थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, what is given in the question. Third में you can correlate the paragraph 1 and paragraph 2. अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन लिख दिया आपने, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लीगल प्रोविजन से कोरिलेट भी तो करना है. You have to correlate, तो वो आपको लिखना है. And at the last you can conclude your answer. ओके, लीगल प्रोविजन हम कैसे लिखेंगे? लीगल प्रोविजन लिखेंगे इफ द क्वेश्चन इज ऑफ एसोसिएट कंपनी, तो यू कैन राइट दैट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन सब क्लॉज 6 of the Companies Act 2013, this is the legal provision. Means one company, second company holds a significant influence and does not include the joint venture and this. ये आपकी डेफिनेशन हमारी स्टडी में कवर्ड है. तो इस तरह से वी हैव टू राइट. सेक्शन नंबर की बात भी बच्चे पूछ रहे हैं, युक्ता पूछ रही है फैक्ट ऑफ द केस, और सम स्टूडेंट आर आस्किंग वेदर राइटिंग ऑफ सेक्शन नंबर इज कंपल्सरी. सेक्शन नंबर अगर आपको 2 सबसेक्शन क्लॉज फॉर एग्जांपल आपको याद है तो लिखिए, अदरवाइज स्किप इट. गलत नहीं लिख के आना. 2 सबसेक्शन क्लॉज 6 का आपको 2 सब क्लॉज 5 नहीं कर देना, या स्मॉल कंपनी का नहीं लिख के आ जाना. व्हाट यू विल डू, जस्ट अगर आपको इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग द सेक्शन नंबर, जस्ट राइट according to section, according to provisions of the Companies Act 2013, according to the provisions of the Negotiable Instrument Act 1881. अब negotiable का तो मुझे याद नहीं है, I am not remembering the act, name of the act, year of the act, then what will I do? I will go to the question paper, because question paper में अगर आप देखोगे तो पूरा आपका एक्ट का नाम along with year is written. ओके, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. You can simply write according to the provisions of the Negotiable Instrument Act 1881. तो इस तरह से आप जब लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे, सेक्शंस यूज करोगे, लीगल लैंग्वेज यूज करोगे, तो आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये लॉ का पेपर ही कर रहा है ना, ये जर्नल पेपर नहीं कर रहा, इंग्लिश का पेपर नहीं कर रहा. व्हाट ही इज राइटिंग लॉ. तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने अगर जून में पेपर दिया था, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपने ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी. अगर आप जून 2024 के बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए वो भी देख रहे हैं, तो अपने आप को एनालाइज कीजिए. आई विल आस्क इन द एंड कि व्हाट
आप लोग खुद बताओगे मुझे कि व्हाट लूपहोल्स या व्हाट आपने क्या क्या, व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स इन योर प्रिपरेशन, व्हाट आर द शॉर्टफॉल इन योर प्रेजेंटेशन। ओके, कि आपने क्या क्या, अभी जब एक बच्चे ने उठाया था, अभी बच्चा बोल रहा था अखिल कि वो सेंक 80 मार्क्स का करके आया था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पेपर पूरा करके आना है। तो ये टिप्स, आप छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए। ओके, मूविंग फर्दर, any marks for section number, how to write answer to score maximum marks in log। सेक्शन नंबर के लिए बहुत क्वेरीज आती है, मैंने आपको बता दिया। सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको याद है तो आप लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। सिंपल इज दैट। ओके, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड बट इनकलकेट। इनकलकेट क्यों हो रही है हैबिट? सीए हो ना आप, अगर आप अभी आप फाइनल क्लियर करने के बाद आप आगे जाओगे तो आपसे सेक्शन से पूछे जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एसोसिएट कंपनी क्या होती है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 क्या है, इसके बारे में एक वो बनाओ, कंपनी है नहीं है, वेदर दिस कंपनी इज अंडर 2 सब सेक्शन 85 और नॉट। तो इनकलकेट करनी है हैबिट हमें, क्यों? बिकॉज सीए बनना है ना। और फाइनल में तो आप इंटर पे जाओगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फाइनल में और भी लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए फाउंडेशन लेवल पे इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग मेन सेक्शंस, may be benefited at later stages। later stages means inter, final and professional life year। आप सीए बन जाओगे तो आपको सेक्शन नंबर्स तो टिप्स पे होने चाहिए, इनकम टैक्स के, कंपनी लॉ के, जीएसटी के। राज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes. Answer to score good marks. Read the question carefully. Question, Raj, I will take your query after some time, beta. Please mute. I will take everyone query. Okay? Yes. Read the question carefully and derive your answer as per the requirement of the question. आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिक्वायरमेंट लिखना है, इन कमेंसुरेटेड विद द मार्क्स एलोकेटेड। ये भी हमारे पास कई बार आता है कि मैम कितना लिखना है, क्या करना है, कितने पेज भरने हैं। नहीं, पेज भरने के लिए नहीं, हमें पेज नहीं भरने, पेज ऐसे भरने हैं कि बस हमें वो मार्क्स देता रहे, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो हमें, अगर हमारा 6 to 7 मार्क्स का है तो यू विल डेफिनेटली फिल 2-3 पेजेस, अगर उससे कम है तो आप कम करिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको देखना है, मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट, 2 थिंग्स आर नेसेसरी। कंप्लीट आंसर, कंप्लीट आंसर मैंने आपको बताया, लीगल प्रोविजन, your legal provision, your fact of the case, your correlation and your conclusion। Similarly indirect question आपको डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स में डिवाइड करना है। अभी मैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल का बताऊंगी, उसमें हेडिंग्स भी दे सकते हो। ये सब चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ओके, कई बार एक ही क्वेश्चन में टू पार्ट्स पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एसोसिएट कंपनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपसे पूछा जाता है वेदर एबीसी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी। तो 2 क्वेश्चन है, पहले आप एबीसी की डेफिनेशन लिखिए एसोसिएट कंपनी की, फिर आप उसको ब्रीफ कीजिए कि वेदर एबीसी और जो भी एग्जांपल आपका दिया है कि दैट इज अ एसोसिएट कंपनी और नॉट। यस, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल फॉर रिवीजन। कितने स्टूडेंट्स ने रिवीजन करी थी, चैट बॉक्स में लिखिए, और कितनों ने नहीं करी थी, प्लीज बी ऑनेस्ट। Yes, Raj, I will explain in English and I will explain in Hindi also, because many students are writing that they are not conversant with English, and many Hindi medium students are also joined the session. So I am writing, I am using both the language, Raj. Okay? No, ma'am. Vinay ne likha no, ma'am. He has not done any practice. Akhil ne likha I do all and 3 MTPs before the exam. Very good, Akhil. Not yet revised. राशि ने लिखा नॉट येट रिवाइज, उसने रिविजन नहीं की है। तो बेटा जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। ओके, टाइम इज वेरी लेफ्ट। हमें जनवरी, यस विधि, आई सिक्योर्ड 62 मार्क्स इन लॉ। वेरी गुड बेटा। So all the students, many students I received call
they have secured 70 marks in law, some students have secured 75, some students have secured 35 marks. So there is a mixture of students. So ये नंबर क्यों कटे हैं? ये नंबर आपकी परफॉर्मेंस की वजह से कटे हैं, ठीक है? तो अभी भी हमें डिसहार्टन नहीं होना, वी डू नॉट वांट टू डिसहार्टन, वी जस्ट गो अहेड, अब वी विल गो फर्दर। कोई फर्क नहीं पड़ता अब हमारा एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, वी विल क्लियर दिस अटेम्प्ट। ओके, सीए के कोर्स में ऐसा होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं, तो ऐसे ही सीए कोर्स में छोटी छोटी चीजें होती हैं। नाउ वी विल क्लियर अवर पेपर, ये दैट शुड बी अवर मोटो। यस, what are the sources available for revision practices? Revision or practice? Study material. कितने बच्चों ने अभी तक स्टडी मटेरियल को कितनी बारी रिवाइज करा है, या किसी ने नहीं भी किया है स्टडी मटेरियल पढ़ा? तो आप मुझे बताओ, चैट बॉक्स में लिखो किस किस स्टूडेंट ने जो है कितनी बारी रिवीजन किया है और किसने नहीं किया है अभी तक टच। आई एम वेटिंग। प्रेम कुमार ने लिखा है वंस, नॉट इनफ, completed, not yet revised. No, that is not the answer I was expecting. one time रिवाइज किया है मैम? नहीं बेटा, उसको और कीजिए। 1 2 बट नॉट कंप्लीटेड, गुड, 2 आपने स्टार्ट तो करा एटलीस्ट। हाफ स्टडी मटेरियल रिवाइज ट्वाइस, ये मैं समझी नहीं आपका आंसर। हाफ स्टडी मटेरियल, आई थिंक यू हैव नॉट कंप्लीटेड द स्टडी मटेरियल। वन टाइम रिविजन, Pankaj ma'am, is study material is sufficient for revision? Yes, it is sufficient. Thank you so much, ma'am. You are so kind. Even after hearing that, yes, we can clear, that gives another vibe, because many of know that it is not meant for you. Go and try something else. नहीं बेटा, this is only starting. अभी से आप घबरा जाओगे तो कैसे इंटरनल फाइनल में क्या करोगे? Just keep going like a clock. चलते रहना है, चलते रहना है ना? You will definitely clear the CA paper. Yes. So many students have written, but thankfully there was not a single student who has written that I have not touched the study material or I have not completed the study material once. Many of you written that yet once you have revised the study material. So that is very good. Just do the study material, read the study material thoroughly once again, minimum 2-3 times, because your all the questions are covered from the concepts. I'm not saying many, some students are saying that ma'am, not a single question is covered from your study material. Yes, that what we expect from you, that as it is question नहीं आ जाए सीए के पेपर में, सीए का कोर्स है, it's a सीए कोर्स, not a 11th or 12th, your questions will be repeated. I am telling you many times that question will not be asked from the study, that question cannot be same. हो सकता है there will be some 2-3 questions from the study material, or like in the June 2024, not a single question except 1 or 2 was asked from the study material, because this is a CA paper. आपको हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहते हैं? बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन योर एग्जाम्स। सेम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। ओके, तो इसीलिए हमें स्टडी मटेरियल में एवरी कॉन्सेप्ट वी हैव टू रीड, एवरी कॉन्सेप्ट वी हैव टू रीड थॉरोली, बिकॉज छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपका, आप ये देखिए 50% पेपर आपका केएनसी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, तो उसके लिए आपको मेमोराइज भी करना है, यू हैव टू मेमोराइज ऑल्सो। ओके, तो अगर आप देखो कंसिडरेशन के, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर पेपर बना था, आपका जो कंपलसरी है आपका, आई एम नॉट रिमेम्बर्ड एज सच, काफी क्वेश्चन जो थे आपके, अनपेड सेलर के ऊपर क्वेश्चन बना था, आपका श्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन बना था, ये सारे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सिर्फ व्हाट यू वांट, यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिमेम्बर। रिमेम्बर तो हमने 11th-12th में बहुत किया था, बिजनेस स्टडीज किया था, इकोनॉमिक्स किया था, इफ यू आर साइंस स्टूडेंट तो आपने साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री भी लर्न किया होगा, है ना? तो स्टडी मटेरियल अच्छी तरह पढ़ना है, मिनिमम 2-3 टाइम्स रिवीजन चाहिए मुझे। ओके, 2-3 टाइम्स रिवीजन करोगे थॉरोली, ये नहीं कि बस पढ़ लिया और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, नहीं, थॉरोली।
इट शुड गो इन योर माइंड. फर्स्ट टाइम करोगे तो मिनिमम 10 days लगेंगे. नेक्स्ट टाइम करोगे तो उसी को पढ़ने में इट विल टेक 5 days. नेक्स्ट रिविजन 2 days कंप्लीट. एवरी टाइम ना, तभी तो आप पेपर करके आओगे कंप्लीट विद इन 1 day. 13 के बाद 15 यू आर हैविंग योर फाउंडेशन पेपर. ओके. यस. आरटीपीज. और एक बात बताऊं, काफी बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैडम ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. यू आर द जज ऑफ योर सेल्फ. आप हमसे पूछिए, मैं मना नहीं कर रही, बट पहले उसका आंसर खुद भी निकालिए. कई बच्चे क्या करते हैं, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले बेटा जो है वो तो सुन लो, जो है वो तो कवर कर लो. जस्ट वॉट एवर इज कवर्ड एट योर वेबसाइट, हैव यू फिनिश दैट? है ना. आई एम सेइंग आरटीपीज, एमटीपीज, suggested answer is also will be uploaded very soon. टेस्ट योर नॉलेज. स्टडी मटेरियल में क्या है? टेस्ट योर नॉलेज. जो है वो पढ़ो, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो. whatever is covered, whatever I am saying to you, just complete that. That will be complete in sense. That is enough. Study material is necessary for your conceptual clarity. Okay. Now RTP you must be aware. क्या होती है RTP? RTP में आपके amendments होती हैं and your some questions. Okay. Around 20 to 25 questions हैं आपके RTP में. Amendments, there are no amendments. अमेंडमेंट्स आपके लिए अभी नहीं है. स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ना है आपको? अप्रैल 2023 का. ये तो आप लोगों के पास हो गई. ओके. आरटीपीज करिए. एमटीपी की 2 सीरीज. यस, देयर आर 2 सीरीज ऑफ एमटीपीज. फर्स्ट हैव बीन कंडक्टेड एंड सेकंड इज येट टू बी कंडक्टेड. सो ये मुझे बताइए, एमटीपी फर्स्ट में किस किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया और किस किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया एमटीपी 1? प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स. Yes, I have completed Vidhi. That's why you scored 62 marks, beta. Done, Pankaj. So have you compared your answers with the answers which given to you? Yes, attempted. Very good. No, ma'am. Satish, please attempt it. It is available on the BoS website. You have to register yourself. During health issues, कोई बात नहीं, अभी भी there is lot of time. I am attempting 100 marks in 3.2 hours. नहीं, Akhil, you have to speed up. That's why you have Akhil is the same person who has got 39 marks in the starting. You have to increase your speed. Yes, ma'am. Okay. Yes, I got. तो अपना स्पीड बढ़ाना है. स्पीड कैसे बढ़ेगा वो भी अभी मैं आपको स्लाइड बताऊंगी. ओके. Yes, many of you have done the MTP and many of you have not. So compare your. आप MTP करोगे, किसने किसने MTP के आंसर्स भी देख लिए थे पहले, मुझे बताओ. किसी ने देखे थे या अटेम्प्ट करने के बाद चेक किए थे? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ये लगता है कि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए. यस यस, युक्ता इज राइटिंग यस. यू हैव कंपेयर्ड योर आंसर्स. आप जब भी आपका एमटीपी आता है तो 2 days का टाइम होता है. तो बिफोर 2 days जब आपके आंसर्स हो रहे हैं उससे पहले ही यू हैव टू कंप्लीट द एमटीपी. क्या होता है, हमारे साथ भी होता है कई बारी, मेरे पास मेरे आंसर्स आर अवेलेबल, तो मुझे लगता है कि इसका आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो मैं एक बार ही देख लेती हूँ. नहीं, डोंट डू दिस. 48 आवर्स में आपको यू हैव टू कंप्लीट द एमटीपी. उसके बाद यू कंपेयर योर एमटीपी क्वेश्चन विद द आंसर्स. और एमटीपी का कितनी देर में कंप्लीट करना है घर पे? 2.5 आवर्स में. ये अखिल आपके लिए. टाइम मैनेजमेंट. व्हेन यू विल कंप्लीट द पेपर, व्हेन आई वाज डूइंग माय 12th ना, तो मुझे मेरे सर क्या कराते थे, वो मुझे 2.5 आवर्स का टारगेट देते थे इन स्पाइट ऑफ 3. बिकॉज if I complete a sample paper or mock test paper in 2.5 hours at my home, then I will be able to complete my paper in 3 hours at examinations. So keep this thing in your mind. एग्जामिनेशन में भी हमें यही टारगेट रखना है 2.5 आवर्स का, तभी हमारी वी कैन इंक्रीज अवर स्पीड. ओके.
यस, Yes, ma'am. कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमें 2.5 आवर्स का टारगेट रखना है, वेदर एट होम, वेदर अंडर एग्जामिनेशन, क्योंकि हाफ एन आवर का सरप्लस रखोगे तो थोड़ा सा हमारे 10-15 मिनट we can utilize 10 to 15 minutes time from the remaining time, and 10 minutes time will be there for your revision. ठीक है, 3.2 आवर्स में नहीं करना अखिल. नेक्स्ट, यस, यूसेज ऑफ लैंग्वेज, मैनर ऑफ गिविंग आंसर. अब ये हमारा, दिस इज नॉट अवर इंग्लिश पेपर, ये तो हमें पता है, दिस इज नॉट अवर इंग्लिश पेपर. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर डूइंग अ लॉ पेपर, है ना. तो लॉ के पेपर में हमें व्हाट लैंग्वेज वी हैव टू, वी आर एक्सपेक्टेड, द लैंग्वेज शुड बी लीगल लैंग्वेज. ओके, मैनी ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे राइट इन अ वेरी लीगल, वेरी जनरल लैंग्वेज में, like they have not written the legal provision, they have not discussed the quotient and correlation. Okay, बस जो भी आया वही लिख दिया. तो नहीं, ऐसा नहीं करना. लैंग्वेज टू बी यूज शुड हैव लीगल टच, लीगल टच होना चाहिए. अभी लीगल टच क्या होता है? लीगल टच मैंने आपको बताया, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 85. फॉर एग्जांपल स्मॉल कंपनी का ले लेते हैं, 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. प्रोविजन लिखा, पेड अप कैपिटल लिखी, टर्नओवर लिखा, पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़. ओके, तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव रिटन. सो ये सब चीजें हमारी, और उसमें एक है एंड, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर. तो ये जो वर्ड है एंड, ये आपका लीगल लैंग्वेज है. ओके, तो ये सब चीजें वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड. नॉटविथस्टैंडिंग लिखा है, प्रोवाइडेड लिखा है ना. ये सब चीजें, एसोसिएट कंपनी के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना होता है, 20%. ये सब चीजें हमें लिखनी है. 1% कंपनी की हमारी प्राइवेट कंपनी की कोई पेड अप कैपिटल है, नहीं है, नहीं है. तो ये सब चीजें हमें बतानी है. ओके, तो इस तरह से हमें अपना आंसर कैसे लिखना है, लीगल, लीगल टच हमारे उसमें होना चाहिए. यस, नो जेनेरिक आंसर, जेनेरिक आंसर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, बट हो जाती है तो इट्स कोई बात नहीं. आप अपना आंसर सिंपल लिख के आइए, लीगल लैंग्वेज दे के आइए. नो वर्बैटिम रिप्रोडक्शन. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सम स्टूडेंट्स राइट टू अस, आस्क टू अस कि मैम एज इट इज लिख के आना है. Whatever is covered in the RTP, whatever is covered in the MTP, whatever is covered in the study material, can you write as it is? मैं तो नहीं लिख सकती. I cannot write. Being the faculty of the subject, as it is, so I cannot write. Okay, so no verbatim reproduction. तो काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यस, हमें एज इट इज हम कैसे लिखें. तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है. नो वर्बैटिम रिप्रोडक्शन, आपको उसको लीगल लैंग्वेज के साथ मर्ज करना है. एज इट इज हमने क्यों दिया है, वाई वी हैव गिवन इन द स्टडी मटेरियल, बिकॉज we want, these are the suggested answers, these are the suggested drafts. So if you read in that manner, then you will try that. अगर आपने, आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, है ना, बेयर एक्ट से क्या होगा, when you are reading the बेयर एक्ट, आप उसको लिख पढ़ोगे, एक बार ही पढ़ा तो आपने रिमेंबर करा, 20% आपको याद हो गया. दोबारा करोगे तो दैट 30% योर बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो आपके माइंड में आ जाएगी. देन नेक्स्ट 40%, देन नेक्स्ट 50%, ऐसे ऐसे करके आप उसको रिटेन कर सकते हो. व्हेन यू विल रीड द बेयर एक्ट, व्हेन यू विल रीड द स्टडी मटेरियल, दैट ऑटोमेटिकली विल कम इन योर आंसर्स. जितना आप पढ़ोगे स्टडी मटेरियल, उतना ऑटोमेटिकली वो फ्लो आ जाएगा. प्रॉपरली फ्रेम लैंग्वेज, नो फ्लो चार्ट. कई बार बच्चे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना के आ जाते हैं. नो, दैट शुड नॉट बी डन. ओके, ये नहीं होना चाहिए. फ्लो चार्ट नहीं बना के आना. प्रॉपरली आपको डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में यू हैव टू राइट. एनी प्रोविजन गिवन शुड हैव एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल प्रोविजन. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ओनली दैट मच प्रोविजन इज सफिशिएंट व्हिच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट.
समटाइम्स क्या होता है, कोई क्वेश्चन है आपका सब सेक्शन 2 पे बना है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, आपका कोई प्रोविजन है सब सेक्शन 2 पे बना है, तो आपको सब सेक्शन 2 ही लिख के आना है, सब सेक्शन 1 और 3 नहीं लिख के आना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। कई बच्चे मेरे से पूछेंगे कि मैडम सब सेक्शन भी लिख के आना है, सब सेक्शन का नंबर मत लिखिएगा, बट आपको अंदर जैसे हम देखते हैं सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तो उसमें अगर एक ही कंडीशन के ऊपर है, इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन, देन यू हैव टू राइट दैट कंडीशन ओनली। ओके, देर आर डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको वही बताना है। अगर एक ही पूछा है तो एक ही बताना है आपको, यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरी मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर कंक्लूजन इन लाइन विद रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, यस प्रॉपर कंक्लूजन आपको देना है, बट यहाँ पे बिग डिस्क्लेमर मैंने क्लॉज लगा दिया, इफ यू आर कंफ्यूज विद द कंक्लूजन, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा एबीसी कंपनी आपकी, आपने पूरा को रिलेट कर दिया, वहां पे लिख दिया, सेकंड में आपसे पूछा है कि वेदर दिस मेंबर कैन वोट और वेदर इज एन एसोसिएट कंपनी, तो आप उसको अपनी उसमें लिख कर आइए कि यस दिस इज द एसोसिएट कंपनी, एक सिंगल लाइन में आप नीचे सबसे एंड में आप उसका आंसर देके आइए, है ना। तो आपको कंक्लूजन भी करना है। Yes, can you repeat 3 point? Third point, I suppose she is asking Harshit. No verbatim reproduction. No verbatim reproduction means you are not supposed to write as it is from the study material or as it is from the RTPs and MTPs. You can write in your own language, but that language should have legal touch and legal key provisions, legal terminologies can be used. प्रॉपर कंक्लूजन के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने जैसे आपने फर्स्ट में लीगल प्रोविजन लिखा, सेकंड में फैक्ट, थर्ड में कोरिलेशन, एट द एंड आपको उसको एक बारी सिंपल एक लाइनर वन लाइनर कंक्लूजन भी देके आइए। देवेंद्र प्लीज म्यूट। यस, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। यस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस। अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो एग्जामिनेशन के लिए कर रहे थे, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू प्रैक्टिस। अब एग्जामिनेशन में जाके क्या करना है ना, वॉट वी हैव टू सपोज फॉर अंडर व्हेन वी रीच द एग्जामिनेशन हॉल। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले, एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले तो यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल। पैनिक नहीं होना, सुबह अपना रिवाइज करो जल्दी उठ के, अपना ब्रेकफास्ट करो लाइट, और देन गो टू द एग्जामिनेशन 1 आवर और 45 मिनट्स बिफोर द टाइम। ओके, 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, जो भी आपका एंट्रेंस में जो आपको एंटर करने का टाइम है उससे पहले ही आप हाफ एन आवर कम से कम यू हैव टू रीच, टेक ए वाटर बॉटल, टेक योर कैलकुलेटर, वॉट एवर इज अलाउड, वो आप लेके जाइए। कूल होके जाना है, जो होगा देखा जाएगा। कई बार वी आर थिंकिंग येट हमें व्हेन वी वर आल्सो स्टूडेंट, आई वाज द स्टूडेंट, मैं पढ़ के जाती थी सुबह उठ के 3 बजे, है ना, मेरा टाइम था मॉर्निंग का, आई वॉज द अर्ली राइजर। ओके, आई कुड नॉट स्लीप एट द नाइट, आई वाज अर्ली राइजर, 3 o'clock उठ के फिर जब मैं व्हेन आई गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर ना, मुझे लगता था आई डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि इसका क्या था, इसका क्या था, ये फॉर्मूला क्या था, इसका मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या थी। ये सबके साथ होता है, इट हैपेंस विद एवरीवन, बट द टाइम आई सी द क्वेश्चन पेपर, everything remembers, I got all the answers, same with same will be applicable for you। आप भी ऐसे ही होता होगा कि मुझे ये सेक्शन याद नहीं आ रहा, बट देयर इज अ डिस्क्लेमर, इफ यू हैव रीड दैट thoroughly, if you have memorized everything, then it will remember to you। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को आ गया क्वेश्चन पेपर याद और आपको भी आ जाएगा आंसर याद, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आपने तैयारी कैसे करी है, उसको कितनी बारी रिवाइज करा है। ओके, यस, इलस्ट्रेटिव पेपर पैटर्न, ये आपने जून 2024 का क्वेश्चन पेपर एक बार आप देख लीजिएगा, जो सितंबर 2024 में दे रहे हैं। पेपर पैटर्न क्वेश्चन पेपर इज अवेलेबल, सजेस्टेड आंसर विल बी अपलोडेड वेरी सून। क्वेश्चन पेपर आप देखिए उसमें किस तरह से क्वेश्चन पेपर है, थोड़ी R&D कीजिए, है ना। 100 मार्क्स का पेपर है।
any student is doing? My screen is visible to you? No, ma'am. No. Web page not available is visible? सर्वर इशू आ गया मैम. Okay, just give me 2 minutes. I'll just check on my mobile also. अशोक जी, everything okay? Okay. Dear student, this might be the problem at your side because it is visible at our team. Okay, so please check it again. Yes, illustrative paper pattern. Question number 1 is compulsory, and out of remaining 5 questions, so how many questions will be there? There will be 6 questions. First is compulsory, and 5 में से कितने करने हैं? 4. अब इसमें क्या होता है, कई बारी के ना क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ट्रिकी होता है. तो मैं तो जब मैंने अपना कोर्स किया था प्रोफेशनल, जब मैंने अपना दिया था, तो मैं क्या करती थी, what I do not read the question number 1 because it's sometimes tricky. अभी तो फाउंडेशन पे तो सिंपल है, इंटर और फाइनल में और भी ट्रिकी हो जाता है. तो मैं क्वेश्चन 1 देखती ही नहीं थी. आई कहां से स्टार्ट करती थी? आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 6 क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 6 से पीछे से स्टार्ट करूं. इट्स माई ऑब्जर्वेशन. माइट बी यू आर सो मच कॉन्फिडेंट एंड योर प्रिपरेशन इज सो मच, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है कि आप फर्स्ट से भी देख सकते हो. इट इज ओनली माई ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है. उसके बाद आपको रिमेनिंग में से एक क्वेश्चन छोड़ना होता है. कई बार हमसे बच्चे क्या पूछते हैं कि मैम मैं सारा करिया हूं, आई कंप्लीट ऑल द 6 क्वेश्चन. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 5 क्वेश्चन ही हो जाए, है ना. यू विल बी एबल टू कंप्लीट 5 क्वेश्चन, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. और इसका क्या होगा, आपको जो मार्किंग मिलेगी वो फर्स्ट 5 आंसर्स की मिलेगी, लास्ट की नहीं मिलेगी. तो 6 में से 5 ही करके आइए. क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करके आना है क्योंकि कंपलसरी है, कभी उसी को छोड़ के मत आ जाना. क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी आपको करने हैं. यस, आंसरिंग प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जिसमें सिंपल एक आपकी एप्लीकेशन बनी हुई होती है. उसके बेसिस पे यू हैव टू राइट. फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट में आप लिखोगे, फर्स्ट स्टेप में लीगल प्रोविजन. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इसके अंदर सेक्शंस भी लिख सकते हो, एक्ट का नाम भी लिख सकते हो और ईयर भी लिख सकते हो. ये चीजें तो आपको लिखकर ही आनी है. सेक्शन नंबर के लिए यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. सेकंड में यू कैन फैक्ट्स ब्रीफ में करने हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम. थर्ड में योर कोरिलेशन किसका, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड. एंड फोर्थ में को कंक्लूजन. तो इन दिस वे यू हैव टू आंसर. ओके, तो आपका फर्स्ट आपको लीगल प्रोविजन प्रॉपर तरीके से लिख के आइए, फैक्ट लिखिए, कोरिलेशन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए. तो रिकॉल द लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व इन द गिवन स्टेटमेंट. ओके, कोरिलेट द लीगल प्रोविजन एंड क्वेश्चन एंड गिव कंक्लूजन. समझाया? यस. नाउ इसका एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं. यस, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये देखो एक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है. आप यहाँ से अपना एक्ट का नाम भी देख सकते हो. कई बार बच्चे 1872 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना. और दा जरूर लिख के आना है. दा एक्ट के आगे दी should be written. X aged 17 years borrowed a loan of ₹50,000 for his personal purposes. Few months later he had become major and could not pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit. ये आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछ ली है इसने. आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल what will be the answer, but this is the practical.
17 ईयर्स का था, उसने he took a loan of 50,000 पर्सनल पर्पसेस के लिए. He had become major कब बनते हैं? 18 years and could not pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit against X. माइनर का केस है ये. तो आंसर कैसे लिखोगे? देखो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा. सबसे पहले what we are writing? We are writing the legal provision. There are 2 sections involved. Sometimes the question is based on 2 sections. आपको याद है तो लिखिए, अदरवाइज क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना? क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ये आप लिख के आना. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद द एज ऑफ मेजोरिटी. माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट. माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता. एंड एनी एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सेक्शन 68 a claim for necessary supply to minor is enforceable by law. ओके, ये सेक्शन 68 भी हमारे लिए कहता है. नेसेसरीज क्या होती हैं? that are essentially needed. They do not include luxury. Okay, in the present case, X the borrower was minor, therefore the agreement was void ab initio. Attaining majority thereof will not validate the contract, nor X can ratify. The loan was for personal purpose and not for necessaries. अगर ये जो लोन था हमारी नेसेसरीज के लिए होता तो वो लाइबल हो जाता. अदरवाइज ही विल नॉट बी लाइबल. Hence, the lender cannot file a suit against X for the recovery of loan as it is not enforceable by law. ये हमारा क्या है? Conclusion. ये हमारा क्या है? Legal provision. ये हमारा क्या है? Fact plus correlation. समझे? different paragraphs I have used. Aarti is writing, ma'am, your voice is breaking. Is any other student is facing the similar problem? Please do write to me. Might be Aarti's case, miss. No. Yes. Aarti, this is, please connect again. Maybe there is a problem with your internet connection. I am receiving so many queries. Just give me 10-15 minutes. I will take everyone query. Do not panic. Many students are writing, ma'am, you're not solving my query. Ma'am, you can see my query. Just give me some time. I am here only for you. Okay? I think you can understand. Yes. So we have seen the application and oriented question. Now we can see another set of question. Direct theoretical question. ये जो मैंने आपको बताया था KNC, ये इसी के होते हैं. इसकी अराउंड 50% वेटेज है. तो 50% भी बहुत होता है ना? अगर आपको स्टडी मटेरियल अच्छी तरह से याद है, मेमोराइज है, तो यू कैन इजीली गेट 50% मार्क्स फॉर KNC एंड 50% यू हैव टू अप्लाई इन द एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस. तो आराम से यू कैन गेट इजी मार्क्स. बट लिख कर आओ, याद करो, समझो, प्रैक्टिस करो और लिख कर आओ. प्रेजेंट करो अपने आंसर्स को. Only then you will get the marks. Vidhi, just give me 10 minutes. Yes, direct theoretical question. In it, you can highlight main points with brief description, such as bullet points with headings. इसमें भी आपको लीगल प्रोविजन लिखना है. अगर क्वेश्चन में लीगल प्रोविजन पूछा गया है तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली, एंड बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स भी लिखनी है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अगर आपसे कुछ पूछा है कि हमें एसोसिएट कंपनी का कोई एग्जाम्पल दो या स्मॉल कंपनी का एग्जाम्पल दो, तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो, बट देयर इज अ लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. ब्रेक द आंसर इन ब्रीफ पॉइंट्स और पैराग्राफ्स. आप डिफरेंट, अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी इस वाले क्वेश्चन का. तो यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. सॉरी. यस, एक क्वेश्चन आया है ये वाला, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये KNC. What do you mean by the term capital? Describe its classification in the domain of company law. 2 questions are involved. मैंने आपको बोला था पहले भी कि might be, कई बारी question involves 2 question. Okay, so meaning of capital. ये जो मेरे से पूछ रहे हो क्रिश, can we underline the important points? तो इसको आप यहाँ तो I have used the bold option. What you can do? You can underline. अब पेन से करना है, पेंसिल से करना है, वो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना.
दैट आई एम नॉट अवेयर, अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू, इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो ब्लैक से या योर पेंसिल। तो इसको आप अंडरलाइन कर दो। द टर्म कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग बट इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस इन रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ये आपकी क्या है? इट इज डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। ओके, ये हमने एक डिफरेंट पैराग्राफ में कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारा क्या पूछा था इसने? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये सारी हमारी टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं विच इज कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल। नॉमिनल, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल, है ना? तो ये हमारा क्या हुआ? बुलेट्स। हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स में डिवाइड कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में वी हैव डिवाइड। अगर मैं इसको इश्यूड कैपिटल को यहीं ले जाती, सब्सक्राइब कैपिटल को यहीं ले जाती, कॉल्ड अप कैपिटल को, पेड अप कैपिटल को, आंसर बहुत सिंपल है। बट यहाँ पे क्या है? प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे यू हैव टू एम्फसाइज अ लॉट कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी है। ओके, तो ये एक हमारा एक क्वेश्चन हो गया केएनसी टाइप। yes, this is a very 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 important. How to manage time in examination? Just listen to it for 10 minutes, then we can take the queries. रीडिंग टाइम मिलता है, यू गेट द रीडिंग टाइम। कितने मिनट का मिलता है? 15 मिनट्स का, मैंने लिखा हुआ है यहाँ। ओके, तो सबसे पहले हम 3 आवर्स में जाने से पहले, तो टोटल पेपर आपका कितना टाइम का हो गया? 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो फर्स्ट हम वी विल डिसाइड व्हाट स्ट्रैटेजी वी विल फॉलो इन दिस 15 मिनट्स। 3 आवर्स को हम अभी सेपरेट रखते हैं। अभी हम किसको देखेंगे? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स कई बच्चों को लगता है इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट बहुत फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, 15 मिनट्स को भी अगर मैं होती तो मैंने इसको आपके ही बच्चों से मैंने सीखा कि इसको भी हम 5 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। कैसे? फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं क्या करूंगी? व्हाट विल आई डू? इन फर्स्ट 5 मिनट्स आई विल रीड द क्वेश्चन पेपर। 5 मिनट्स में आई कैन रीड, आई कैन गिव अ ग्लांस, शॉर्ट ग्लांस। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पेपर है भैया, ये मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर है। कोशिश करो 2 से स्टार्ट करो, फर्स्ट को बाद में पढ़ना। 6 5 4 3 2 1, कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यस क्वेश्चन पेपर सही है, अच्छा है, बढ़िया है, मेरे सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चंस में होता है, बट उसको जब डबल पढ़ोगे तो वो भी आ जाएगा। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। फर्स्ट 5 मिनट्स आई हैव यूटिलाइज्ड किसमें? रीडिंग में। ओके, रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको ये देखना है कि विच क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू डू। ये क्या हो गया मैम? जो क्वेश्चन मुझे नहीं करना वो डिसाइड करूं? यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो वो एक क्वेश्चन जो है बीच का, वो मुझे कौन सा है? विच क्वेश्चन इज दैट? तो दैट क्वेश्चन आई हैव टू सिलेक्ट, मतलब मुझे सारे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। आई हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस अगेन। तो सेकंड टाइम रीडिंग हो जाएगी, प्लस फर्स्ट को एक क्वेश्चन जो है हमारा ऑप्शनल, वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 10 मिनट्स में क्या करा? क्वेश्चन पेपर 2 टाइम्स पढ़ा और एक क्वेश्चन जो हमें नहीं करना वो डिसाइड कर लिया। वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम वी विल बी सेलिंग बिटवीन 2 क्वेश्चंस, कौन सा करूं कौन सा करूं कौन सा करूं, ये नहीं करना। 5 मिनट्स में सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कि जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है उसको कर लो, जो नहीं आता, या कई बार होता है बच्चों को लगता है कि यार मुझे तो सारा आता है, अब ये सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन ना करूं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अपनी चॉइस है। सारे क्वेश्चन नहीं करके आ सकते हम, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वी कैन गेट मोर मार्क्स, इंस्टेड कि हमने सारे के सारे लिख आए।
नेक्स्ट 5 मिनट्स में, यस, अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप क्या करोगे? बताओ बताओ, गिव मी द आंसर. रिमेनिंग 5 मिनट्स, हाउ यू विल यूटिलाइज? यस, Krish is writing sequence. BHVSRB ये है. राइट विच क्वेश्चन? यस, नेक्स्ट 5 मिनट्स में यू विल डिसाइड कि मुझे फ्लो क्या रखना है. कई बार क्या होता है, समटाइम्स हैपेंस कि क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, तो आई विल स्टार्ट माई क्वेश्चन पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 5 से आपने स्टार्ट करा, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी तरह करके आइए. उसी से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को पेपर आता है नहीं आता. उसी तरह से आप अपना पहला आप हल्का सा कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो कि पहला क्वेश्चन मुझे 5 करना है, इसके बाद मुझे 2 करना है, इसके बाद मुझे 1 करना है, इसके बाद 3 करना है. बट यहाँ पे भी एक पॉइंट है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो देयर विल बी 3 to 4 सब पार्ट्स, उसमें सब पार्ट्स होंगे. आप यू डोंट, प्लीज डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द सब पार्ट्स. ABCD की सीक्वेंस में ही करना है. इतना कंफ्यूज नहीं करना क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर को, हमें उसको स्मूथ रखना है. वी हैव टू मेक इट स्मूथ कि यस, हमें उसको ज्यादा काम नहीं कराना, हम बस अच्छा अच्छा लिख कर आएंगे, इजी मैनर में पेपर करके आएंगे, बस वो हमें मार्क्स दे, वो कंफ्यूज ना हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5 करा है, ABCD करो. क्वेश्चन नंबर 2 करा है, ABCD करो. बाई चांस मुझे क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी? छोड़ के आ जाऊंगी? नहीं, आई विल नॉट लीव. मुझे 100% पेपर करके आना है. ये एक मेरा है कि मुझे 100% करके आना. अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया था, ही गॉट 94, ही अटेम्प्टेड 94, बट 2 नंबर से वो रह गया. एंड ही गॉट 48 इन लॉ, बट किसी पेपर में 2 नंबर की वजह से रह गया. तो बाई चांस इफ ही अटेम्प्टेड द 100 मार्क्स पेपर, तो ही कैन इजीली गेट 2 or 3 मार्क्स, और वो भी स्पीड की वजह से उसको पेपर आता था. जैसे अभी अखिल का केस था, उसको पेपर आता था, बट फिर भी वो 20 नंबर का नहीं कर पाया. 20 में से 10 नंबर इजीली आ सकते हैं, 10 से 15. तो 2 नंबर की वजह से ही लॉस्ट हिज अटेम्प्ट. एवरी सिंगल मार्क्स इज इंपॉर्टेंट, ओके, इज एसेंशियल, इज रेलिवेंट. तो आप बी नहीं आता अगर आपको 4 का जो भी आप सब पार्ट कर रहे हो, तो लीव अ पेज ऑफ 2-3 पेजेस. और जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए, मैंने आधे घंटे का आपको टाइम रखा था, आधे घंटे का या 10 से 15 मिनट टाइम जो भी बचा, उसमें वो आप कुछ भी लिख कर आइए रेलिवेंट टू दैट क्वेश्चन. ठीक है, बाई चांस आपको बिना पढ़े नंबर मिल जाए, इट मे हैपेंस. आपका परफॉर्मेंस बाकी क्वेश्चन में कितना बढ़िया है कि उसको लगा ये तो उसको आता ही है, ये भी दे दूं मैं 5 में से 4 नंबर या 5 में से 5 नंबर. अगर गलत भी लिख के आए हो, क्या पता लीगल प्रोविजन आपने सही लिखा हो, तो 5 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे. मैम कॉपी डिजिटली चेक होती है कंप्यूटर पे, तो फिर सब पार्ट्स जो है उन्हें भी आगे पीछे लिख सकते हैं ना? अकॉर्डिंग टू मी आपको नहीं लिखना चाहिए, बाकी इट्स अप टू यू. मैम ये मतलब रूल्स क्या कहती हैं? रूल्स ऐसे कोई रूल्स नहीं है इसके, ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है. ओके, ये आपने अपना नाम ऐसे क्यों लिखा हुआ है, MS3 अटेम्प्ट फेल्ड? वाई यू हैव रिटन योर नेम लाइक दिस? आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे तो यू विल बी डिमोटिवेटेड बेटा. जस्ट चेंज दिस नेम राइट नाउ. गिव सम नाइस नेम टू यू. CA लिखो अपने नाम के आगे, CA. एंड व्हाट इज योर नेम? CA MS जो भी है पूरा लिख के आप इसको चेंज कीजिए. आई डोंट वांट टू सी इट, प्लीज. यस, सो आई हैव टोल्ड यू 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन, आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, नाउ नाउ कमिंग टू 3 आवर्स. 3 आवर्स को हमें कैसे यूटिलाइज करना है? 3 आवर्स में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं? 5. तो और 3 आवर्स में नहीं करने, 2.5 आवर्स में करने हैं. हाफ एन आवर हमें अलग रखना है.
तो इसकी तरफ से क्या हो गया, 30 मिनट्स पर क्वेश्चन। 30 मिनट्स पर क्वेश्चन मीन्स एवरी क्वेश्चन इंक्लूड 3 सब पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल, तो 10 मिनट्स में मुझे एक ही क्वेश्चन करना है। आप इस तरह से स्ट्रैटेजी रखिए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए 2.5 आवर्स में। उसके बाद जो टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट्स का ऊपर नीचे चलता है, फिर आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ब्यूटीफुल बनाइए, जो भी करना है कीजिए। ओके, तो क्या होता है 2.5 आवर्स में कई बार क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छी तरह आता है, मैं उसमें सब कुछ लिख डालूं, आई वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट आई कैन राइट। नहीं, आपको 6 में से 6 ही तो मिलेंगे। what will you get? You will not get 7 number out of 6. ओके, बट उसकी जगह कई बारी जैसे अभी छोड़कर अखिल का 20 नंबर का छूट गया है ना, 20 नंबर का छूट गया, तो अगर वो उसको अटेम्प्ट करके आता तो 39 की बजाय उसको 49 मिलता, 20 नंबर में मिलता आराम से उसको। उसको 50% मार्क मिले हैं 80 में से 40, तो 100 में से 50 ही कैन गेट इजीली। Akhil, I'm sorry, I'm taking your example so many times, but do not offend. I'm just giving an example. नो इश्यू मैम। Sorry, no issue ना। नो इश्यू मैम। देखो, अब आप ही देखो, आप 80 का करके आए हो, आपको 50% मार्क्स मिले हैं। अगर आप 100 का करके आते तो आपको 50 मार्क्स मिलते, हो सकता है 50 से भी ज्यादा मिल जाते। चलो कोई बात नहीं, बट अभी ये सोच लीजिए कि मुझे 100 मार्क्स का पेपर करके आना है। और अखिल, आपके लिए तो स्पेशली कह रही हूँ, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर पेपर इन सितंबर 2024, द स्पिरिट विच यू आर शोइंग। ओके, और आप मुझे कॉल भी करना सितंबर 2024 के बाद कि यस मैम आई हैव क्लियर्ड माय फाउंडेशन पेपर। ओके, यस मैम। ओके, तो ये हमारा हो गया 3 आवर्स की स्ट्रैटेजी भी 2.5 आवर्स में रखना है। 2.5 आवर्स में कोई क्वेश्चन मुझे ज्यादा टाइम लग गया, इन विच क्वेश्चन आई टुक सम टाइम, तो आई कैन टेक 5 मिनट्स फ्रॉम माई सरप्लस टाइम। ओके, तो इस तरह से स्ट्रैटेजी रखो, और यही स्ट्रैटेजी हमें अपने इसमें करनी है एमटीपी में यूज। ये सारा मैंने आपको बता दिया है, आई एम नॉट रिपीटिंग, यू कैन रीड इट योर ओन, जो मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझा दिया है, जस्ट रीड इट वंस। adhere to time allocated. Answer should be precise and to the point. Yes, there is no elevator to the success, you have to take the stairs. है ना, आपको चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप खड़े हुए और अपने आप ऊपर पहुंच गए। मॉल्स में होता है, बाहर की कंट्रीज में होता है, बट सीए कोर्स में आपको स्टेयर्स ही लेनी पड़ेगी। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, फाइनल के साथ साथ सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग पहले, ओएमसी जो भी आपका जीएमसीएस और एआईसीटी एमसीएस जो भी वॉट एवर द कोर्सेज, तो स्टेयर्स लेनी है, एक एक स्टेप आपको यू हैव टू कंप्लीट, you have to reach on the top of the ladder. So there is no elevator. Your future is created by what you do today, not tomorrow. अभी जो आप इस टाइम पे कर लोगे, that will decide your future. Okay? तो just keep this thing in your mind कि मुझे मेहनत करनी है। कई बार क्या होते हैं, मेरे नोन में भी था एक बच्चा था, वो मुझे कह रहा था कि मैम सब बच्चे कहते हैं कि हमने सीए ले लिया तो हमने संन्यास ले लिया, इट्स लाइक दिस थिंग। और जो उनको बोल रहा था वो सीए थे, और जिसको बोल रहा था वो सीए फाउंडेशन कर रहा था इंटरमीडिएट, तो उसकी वजह से वो बच्चा इतना डिस्टर्ब हो गया, उसका सीए इंटर क्लियर नहीं हुआ और वो सीए नहीं बन पाया। तो आप देखो नेगेटिव थॉट्स का कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता है। जो सीए बन गया उसने बच्चे को डिमोटिवेट कर दिया कि तूने तो सीए ले लिया, ऐसा मतलब संन्यास ले लिया, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में 4-5 साल। ठीक है, तो उसने भी तो 4-5 साल कुछ नहीं किया होगा, आप भी मत करो 4-5 साल, जस्ट फोकस, है ना। अभी भी कई बच्चे कहते हैं कि मैम एंट्री इजी है, एग्जिट टफ है। अभी थोड़ा सा फाउंडेशन का पेपर टफ आ गया, फाउंडेशन का पेपर हमारा पेपर अच्छा मतलब रिजल्ट कम है इस बारी, तो बच्चों ने बोल दिया एग्जिट टफ कर दी, एंट्री इजी कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, इस बारी रिजल्ट कम है,
अगली बारी आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म करोगे कि रिजल्ट विल मल्टीप्लाई ट्वाइस, आई कैन गारंटी. It's not the fault of ICAI, it's the fault on your preparedness, your level of preparedness. भूल जाओ कि आईसीआई ने रिजल्ट कम, कई बच्चे कहते हैं आईसीआई ने रिजल्ट कम निकला, ऐसा नहीं होता. अभी भी देर आर 4 लाख मेंबर्स, है ना. तो सब लोग कैसे बने हैं, मेहनत करके बने हैं. आप भी मेहनत करो एंड यू विल क्लियर. अभी भी अगर मैं मानू चलो कि कुछ हुआ है तो 10% या जो भी फाउंडेशन का रिजल्ट है 14% रिजल्ट भी तो निकला है. उसमें भी मतलब 8 to 9,000 फाउंडेशन बच्चे पास हुए हैं. तो वाई कांट यू, वाई यू आर लुकिंग एट द 88% जो फेलियर है, उसमें अपने आप को काउंट मत करो. नेक्स्ट टाइम यू विल बी इन द लिस्ट परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट. ओके, ऐसा नहीं है कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ. 8 to 10,000 बच्चे पास हुए हैं. चलो, yes, you cannot change your future but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Habits कैसे, सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हो, आप सोचते हो कि ये मेरे पास है स्टडी इतना, इसके अलावा मुझे क्या मिल जाए. फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस है, नेगेटिविटी है. ये सब चीजें क्या है, योर हैबिट्स, जो आपको गलत हैबिट्स हैं, रॉन्ग हैबिट्स हैं, विच यू हैव टू चेंज राइट नाउ. अभी कई बच्चे कहेंगे कि मैंने तो सेशन अटेंड करा है, अब तो मैं आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक लूंगा. लो, ब्रेक लो, बट उस ब्रेक में क्या करेंगे आप लोग, क्या करोगे, फोन, इंस्टा, टीवी. तो ब्रेक क्या हुआ, ये आपके माइंड में तो और भी कुछ डिस्ट्रक्टिव चीजें आ गई. माइंड आपका पीसफुल नहीं हुआ. आपको what you have to do in the break, just go to terrace, just enjoy the rainy weather, just play with your pet, just talk to your family. Okay, just do walking, just do meditation. 5 कुछ टाइम के लिए just avoid phone and your social media. कि सीए के लिए ये कह रहे हैं, इसने ये वीडियो डाल दिया, इसने ये बोल दिया. फॉरगेट एवरीथिंग. ये लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे. किसको पास होना है, आपको. ठीक है, गलत वीडियोस मत देखिए. मोटिवेशन, अगर आपको देखना ही है तो मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, है ना. अब अपना रिलैक्स कीजिए, टेरिस पे जाइए, बालकनी में जाइए, थोड़ा सा लवली वेदर, टेक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ताकि आपके ऑक्सीजन पहुंचे माइंड तक. चलो, अब मैं 1 by 1 क्वेरी लेती हूँ. फर्स्ट आई विल कंप्लीट द चैट बॉक्स, उसके बाद आई विल गिव अनम्यूट ऑप्शन टू एवरीवन. हाउ कैन आई कवर माई बिजनेस लॉ सिलेबस फास्टर टू स्कोर मोर, ये हिमांशु कवर्ड. जो जो कवर नहीं होगी आई विल टेक दैट क्वेरी. फॉर्मेट हो गया. हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड, इज इट नेसेसरी टू अंडरलाइन, नो इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन अंडरलाइन. I face some difficulties in case law representation. I have conveyed you. I have taken this query. How to present the answer in law, ma'am? I have taken. Same syllabus for January 2025. Why you are going to give paper in January 25? Why not September? Gaurav Kumar. Yes, if the paper is in January, the same syllabus, the same study material. Mr. Rishant, I finished my syllabus and attempt 100 marks in June 2024, but I got only 27 marks. So, ma'am, what my mistakes is happening? Dear Ishant, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई. Just just examine yourself, introspect yourself कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, और आप यहाँ पे लिखिए कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं. आपने मेरे वेबकास्ट से जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला, जो मैंने रिविजन के लिए बोला, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए बोला, उसने कितना फॉलो किया था, कितना नहीं फॉलो कर पाए थे. Mr. Mukabir, since copy are checking digitally online on computer, nowadays, so in exam, can I answer, say 1B, then directly 3C, then 1C in my any order? Dear students, I'm not aware, but according to me, you can, according to my suggestion, मैं तो सजेशन क्या है मेरा कि आप उसको
सीक्वेंस में करिए, मेन क्वेश्चंस की आप सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हो, बट सब पार्ट्स की आप मत कीजिए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग काफी समझदार हो, यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। आपको भी क्या मुझे लगता है कि अगर आप कर सकते हो उसको फॉलो, तो आप इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो इजीली, इसमें कोई हार्म नहीं है। देवा ज्योति, योर क्वेरी सॉल्व। Is my comment visible to you? Yes, Mukabir, I have taken your query. देखो मुकाबिर ने कितने सारे, इस पे जब मैं आपको समझा रही थी तो ही हैज रिटन सो मेनी कि मैम माई प्लीज रिजॉल्व माई क्वेरी, प्लीज रिजॉल्व माई क्वेरी, और उसने मे बी कॉन्सेंट्रेट ना किया हो, तो यही लेक्यू ना हो जाता है। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब मैं बोल रही हूँ व्हेन द फैकल्टी इज स्पीकिंग जस्ट लिसन एंड एवरी क्वेरी इज केटर्ड। 57 marks in law. Yes, great. Bhumika. मुकाबीर ने लिखा है सीए छोड़ दूं, मेरा सीए करने का मन नहीं कर रहा, 3 अटेम्प्ट्स लग गए हैं। मुकाबिर आप ये पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आपने क्या प्रॉब्लम आ रही है सीए के पेपर में, क्यों आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप हमसे बात भी कर सकते हो, आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में आके भी बात कर सकते हो, जस्ट इफ यू आर रिसाइडिंग इन दिल्ली नोएडा। और अगर आप नहीं आ सकते तो जस्ट टेक माई नंबर फ्रॉम द कॉन्टेक्ट द अवेलेबल एंड जस्ट टॉक टू मी बिफोर लिविंग द सीए। ओके, एक बार आप मुझसे बात कीजिए, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा। सीए छोड़नी नहीं है ना, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, एक अटेम्प्ट और देके देखिए, क्या पता आपका क्लियर हो जाए, एंड डेफिनेटली इट विल क्लियर। मैम मार्क्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम कितना कितना राइट करना, ये प्रॉब्लम आई हैव टेकन, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। कैन वी अटेम्प्ट एग्जाम विथ 70% कवरेज ऑफ सिलेबस? नहीं, 100%। याशिका, you have to complete, you have to give your 100%, you have to read the study material 100%। okay, you have to utilize this 100 days, ये जो भी आपका है 35 days in 100% मैनर। कैसे भी स्लीप भी प्रॉपर लेनी है, आपको ब्रेक भी लेना है, और आपको पढ़ाई भी करनी है। कैसे करनी है ये आपको मैंने गाइड कर दिया है काफी अच्छी तरह, और अब आप खुद ही काफी अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो यू कैन डिसाइड। yes, now I can take the chat box। yes, चैप्टर वाइज वेटेज आपकी आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट अगर आप देखोगे तो इंडियन रेगुलेटरी की 0 to 5% है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 25 to 30%, पार्टनरशिप सेल्स कंपनीज की 15 to 20, एलएलपी की 5 to 10, एंड योर नेगोशिएबल इज ऑल्सो 5 to 10, और आप आई सपोज 15 to 20। सेक्शन नंबर इज कंपल्सरी टू राइट। यस, अगर आप सेक्शन नंबर लिखते हो तो इससे बेनिफिशियल जरूर होता है, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा बनता है। ओके, चैप्टर वाइज वेटेज डन। Bhavna is writing, ma'am, I was given June 2024, but it was unsuccessful, and now I decided to give January 2025. Is this correct decision? Dear Bhavna, you are the judge. You can take your own decision at your own. If you have decided that you are giving paper in January 2024, then it's fine, no issue. But you can, according to me, the students can try in September 2024. But आप एक बारी अपनी preparedness देख लीजिए लेवल की एग्जामिनेशन के लिए। राइटिंग फैक्ट ऑफ द केस इज कंपल्सरी। युक्ता इज राइटिंग फैक्ट ऑफ द केस, कंपल्सरी नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, लीगल प्रोविजन को छोड़ के, लीगल प्रोविजन मैंडेटरी है लिखना, बाकी फैक्ट्स कोरिलेशन तो आप करोगे ही उसको आंसर, तो यू कैन राइट।
Pranav, how to remember case name? Instead can we use Mr. X ABC Limited? उसमें क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा, अगर आपको कोई केस लॉ के ऊपर करना है, जैसे मोहिरी बीबी धर्मोदास, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप ये से लिख सकते हो एज पर द डिसाइडेड केस लॉ, क्या डिसीजन था उसका। Vidhi is writing, I secured 141 in June 2024, but still lacking confidence. That should I give September or shift towards? Vidhi is the same person who is written that she secured 62 marks. तो विधि आपके लॉ में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए तो यू विल गेट इजीली 200 मार्क्स। और मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया है, आई सपोज मुझे मेरे वजह से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, तो श्योरली यू कैन गिव पेपर इन सितंबर 2025। और अभी सोचने का टाइम नहीं है, अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हमें सितंबर देना है, जनवरी देना है। दैट शुड नॉट बी द क्वेश्चन। सितंबर में हमें पेपर कैसे देना है, क्या पढ़ना है, दैट शुड बी द क्वेश्चन। Is sufficient study material is sufficient for revision? Yes, is sufficient for revision along with practice questions. Questions practice करनी है आपको। Ma'am, it's my first attempt and I am not confident for law. राशि, I suppose मेरे सेशन के बाद आपकी ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी कि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रिपेयर्डनेस से आता है और पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। ठीक है, विधि इज राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट कितने अटेम्प्ट के करने चाहिए मैम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बेटा नई स्कीम के अंदर ये पहला पेपर है जून 2024 का, तो इससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज अर्लियर द पेपर वाज ऑफ 60 मार्क्स, नाउ इट हैज बीन 100 मार्क्स। Even module examples are so important. Yes, modules examples are very important. Sometimes the questions are framed on the examples. अगर आप इस बार देखोगे सेल और रिटर्न का जो क्वेश्चन है ऑन रिटर्न बेसिस, वो आपके एग्जाम्पल में से ही बना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से। मैम पूरी मॉड्यूल रीड करनी है रिवीजन का, तो पॉइंट हाईलाइट करने वाला वो करा। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आरटीपी चैप्टर वाइज करना बेटर होगा या होल करना होगा? स्टडी मटेरियल तो आप कर चुके हो, अब तो आप आरटीपी पूरा कीजिए। वैसे वो चैप्टर वाइज उसमें सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस हैं, बट आप उसको कर सकते हो। Vidhi is writing, any tips for attempting distinguish between, because I got stuck in exam earlier, that how many point of difference I should write? अगर आपको डिफरेंस का क्वेश्चन है ना, एंड अगर इफ देर आर, ये आपको देखना पड़ेगा कि 6 मार्क्स क्वेश्चन है तो यू कैन राइट 6 डिफरेंसेस। Shruti is asking, ma'am, why the pass percentage is very low in foundation? Will this continue hereafter? आपको पास होना है सितंबर 2024 में। योर परसेंटेज चाहे आपका 10% आए, चाहे 15, चाहे 20, आपको उस परसेंटेज में दैट्स यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, यू शुड बी इन द पासिंग परसेंटेज। तो इट इज इमटेरियल व्हाट विल बी द पासिंग परसेंटेज। ओके, if the 10,000 students have passed in June 2024, so all the students will pass, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं they will definitely pass in September 2024। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे फेल हुए, मुझे फर्क पड़ता कितने बच्चे पास हुए। तो आप सब पासिंग में होने चाहिए। आई वॉन्ट दैट एवरी स्टूडेंट हु इज सीइंग दिस लेक्चर विल बी पास। ओके, तो हमें ये नहीं सोचना पासिंग परसेंटेज कम थी क्या था, बच्चे 8, 10, 12,000 students have cleared the foundation. Just think about that side. Please unmute yourself. Please mute yourself, Shoaib. Harshit is writing, ma'am, how to revise
full syllabus in efficient manner. Main point is sufficient for 7 to 6 months. ये देखो अभी अब आपके if we see that 35 days is left, तो आप इसमें ना जो भी आप करते हो just do 2 subjects one day. मैं क्या करती थी, प्रैक्टिकल, 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल इन द मॉर्निंग, प्रैक्टिकल इन द इवनिंग. तो इस तरह से आप उसको 5 डेज में कवर करो. 5 डेज में यू कैन कंप्लीट 2 practical paper are there like accounts and QT is your practical and law and economics is your theoretical, है ना. तो आप दो पेपर की सिमेट्री बना लीजिए. फर्स्ट 5 डेज में 2 पेपर, नेक्स्ट 5 डेज में 2 पेपर, उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में या 2-3 डेज में एक बारी और रिवाइज और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. तो ऐसे करके आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. क्वेश्चंस, क्योंकि जितने क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस उतने ही आपको क्वेश्चंस याद आ जाएंगे एग्जाम में कि यस ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, दैट क्वेश्चन आई रिमेम्बर. तो इसीलिए देयर विल वी वांट दैट लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू डू एट होम. विनय इज राइटिंग, मैम माई मिस्टेक वॉज आई रिमेम्बर एवरीथिंग बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था. कोई बात नहीं विनय, अभी भी बहुत टाइम है. जस्ट प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो एट होम. कई बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. नहीं, हमें थ्योरेटिकल की भी करनी है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आप टेबुलर फॉर्मेट में और ये सब करके आ जाते हो, बट जब थ्योरी लिखने की बात आती है ना, व्हेन वी राइट थ्योरी, उसमें हमारी स्पीड नहीं बन पाती. वी कैन नॉट कंप्लीट द पेपर इन 3 आवर्स. तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है. Krish is writing, I daily promise to myself, I will be a successful CA in future. This is my motivation. Yes. आप अपने रूम में भी लगा सकते हो अपने नाम के आगे CA अखिल, CA युक्ता, CA क्रिश, CA ध्रुव, CA श्रुति. मोटिवेशन. Rashi is writing, got so much confidence and motivation through this webinar. Thank you so much. Thank you, dear Rashi. But please follow this and you can see this webcast on 2-3 days more. ताकि अगर आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लूज हो तो यू कैन सी दिस वेबिनार. और ये पॉइंट्स आप रिमेंबर कीजिए. और सितंबर 2024 क्लियर करने के बाद मेरे पास कॉल आना चाहिए या मेल आनी चाहिए कि यस मैम आई हैव क्लियर द पेपर. Satish is writing, negative thoughts, how can forgive them? नेगेटिव थॉट्स फॉरगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो. आप अच्छा, मतलब नेगेटिव थॉट जो होता है ना हमारा माइंड, इफ यू सी द पॉजिटिविटी, अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो वो होता है. यूनिवर्स हमें पॉजिटिव चीजों के लिए, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को रखने की जरूरत है. हमें अपना माइंड इज अवर फ्रेंड एंड माइंड इज अवर एनिमी साइमल्टेनियसली. तो हमें उसको कंट्रोल में रखना है. वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड बट वी शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अवर माइंड. देयर इज अ डिफरेंस. तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा. सो थिंक दैट माई माइंड इज, आई हैव टू कंट्रोल माई माइंड. मुझे कुछ सोचना ही नहीं है गलत. जो पूजा करते हो या फिर जो भी आपका फॉलो है स्पिरिचुअल में, जो भी आपका रिलीजन है उसको फॉलो करो. जो आप पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, इट इम्पैक्ट्स अ लॉट. ठीक है, ऑन योर पॉजिटिव माइंड. ओके, टीवी, फोन, सोशल मीडिया सब छोड़ दो कुछ टाइम के लिए. मैम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. राशि, यस बोलो राशि, बोलो. मैम वन क्वेरी. हम्म. मैम अगर जैसे केस लॉ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट वेल, तो उस पे जो केस लॉ एप्लीकेबल हो रहा है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, तो सिर्फ केस लॉ का नेम लिखना है या पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखना चाहिए? आपको एक्सप्लेन भी करना है ना, एंड साथ साथ आपको यू हैव टू सी द वेटेज ऑफ मार्क्स. कॉर्पोरेट वेल थ्योरी एक्सप्लेन कर दो और उसके केस लॉ के साथ उसका फैक्ट बता दो. केस लॉ के फैक्ट नाम से कुछ फायदा नहीं होगा, आपको नाम के साथ साथ आपको डिसीजन भी लिखना है. तो जब कभी भी पूरा पेपर जब भी करे तो यस, हर क्वेश्चन में सेम चीज एप्लीकेबल है? सेम चीज नहीं, सब हर क्वेश्चन में नहीं है.
ये कौन है? ध्रुव गुप्ता. Who is doing this? Please stop sharing. ठीक है राशि. Session was very helpful. Thank Yes, you so ma'am. much. Thank you, ma'am. Okay. If I skip Ma'am. an attempt after filing out the exam form, will it still be counted? I am not aware about this, Vijisha. Just contact the examination department, please. हर्षित इज राइटिंग. मैम कितनी लाइन में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहिए? बेटा ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है. Ma'am. Just give me 2 minutes. Shruti, thank you so much for your helping us with valuable tips. Will definitely clear September. Yes, you will clear your exam. Yes. Now, just raise your hands. Whoever want to speak, whoever want to ask your query, just raise your hands. I will take one by one name. Yes, Rashi, please ask. Ma'am, as you said that in the paper of business law, there will be 6 questions and first question is compulsory. No, question number 1 is compulsory and out of... Yeah, ma'am. That's only I am saying that you said that there will be 6 questions and question number 1 is compulsory, which you have to attend, and then you have to select 4 questions which you want to do. So, ma'am, I was asking that if it sometimes it many times it happens that if you are having 4 questions in your hands and in second question you know first and second point, but you are not knowing the answer of third point. So it is not like that much if we can do the third point of any another question. I cannot understand your query, beta. Please explain again. Ma'am, I'm saying that if like we are doing second question and in second question you said that there will be three points which 3 questions which you have to attend. Like we take the example of ABC, 2A, 2B, 2C. Okay. Yeah, ma'am. That's ABC one. So you said that you have to attend all the 3. Like suppose in second question we know the answer of A and B, but we don't know the answer of C. So we cannot write the point C or any other question which we know from any of the question other than second question. If you are attempting question number 2 and you are aware about 2A, 2B and you don't know the answer of 2C, then you can skip. You can leave the 2-3 pages and you just try to complete the remaining other questions. Okay. आप अलग क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस कीजिए. उसके बाद अगर आपको 2C याद नहीं आता तो आप उसको कुछ भी लिख कर आइए. अदरवाइज क्या पता आपको 2C याद हो जाए कि यस क्या था उसके अंदर. ठीक है राशि, यही प्रॉब्लम थी. Yes, ma'am. Yes. Okay. Any other student? Please raise your hands. Satish is writing. Thank you, ma'am. All doubts are clear. Thank you, Satish. Rashri, you can lower your hand if your query is resolved. Yes. Bhumika is writing, ma'am. I want to get 90% marks in law in my September attempt. Yes, Bhumika, you will surely get 90% marks in your law and you will definitely clear your September 2024 examination. The session has motivated me to study hard. I will definitely clear my September attempt and I will call you after that. I will wait for your call, beta. Mr. Naveen, thank you, ma'am. I had clarity in this session. Thank you, Naveen. Any other queries? Rashri, you, yes. Any other queries? All the queries are resolved. Please reply to me through chat box. Clear, Che? Yes. Yes, ma'am. Chalo. So we can close the session.
Dear students, thank you for making this session an interactive session. Just keep motivated, stay positive, and stay healthy. And remember all my points. And do call me after clearing your CA September 2024 examinations. Okay? Okay. All the best. Just focus on yourself, believe in yourself, and focus in your study. All the best.